Welcome to the session. तो चलिए without further wasting time, let's start AML KYC guidelines with a new format, with a new way. We are going to discuss it all. ठीक है, चलिए बात करते हैं. And today in this session we will be covering PML Act with latest amendments, AML KYC, PML Maintenance of Records Rule 2005, CTR, STR, CKYCR, latest changes in KYC norms and top MCQ. In this class, I will be discussing 20-30 MCQs, but in the PDF, you will be given 125 MCQs so that when you have time, you can go through it. Remember, this is not only about AML KYC. So many related norms we are going to discuss. What is PMLA? PMLA चीज है क्या? पहले वो जानते हैं. Prevention of Money Laundering. What is it? The Prevention of Money Laundering Act 2002 is an act to prevent money laundering and to provide for confiscation of property derived from or involved in money laundering and for matter connected therewith, incidental thereto. तो प्रिवेंशन, जो भी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया जाता है उसको रोकने के लिए, उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में एस्टैब्लिश किया गया. मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस where the criminal proceeds disguise their illegal origin. मनी लॉन्ड्रिंग वो फॉर्मूला है जिससे आपकी जो क्रिमिनल प्रोसीड है, मतलब इल गॉटन मनी, ये तो हम बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं, आगे पढ़ेंगे बिट बाय बिट. ठीक है, यस, ये कॉमन सिलेबस है, ये कॉमन कंटेंट है, एएमएल केवाईसी बेसिक है. ठीक है, तो जो क्रिमिनल प्रोसीड है, मतलब जो पैसा आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से मिल रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी करने के वजह से, रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, व्हाट यू गेट आउट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, टू मच ऑफ ब्लैक मनी. सो थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, दैट origin of that black money is being distracted from its real illegal source. आपने देखा होगा, there are so many NGOs running in India. What they do? They simply they convert the black money into white money. There are so many schools running. In the name of school, what they do? They just convert black money into white money. Are you still wasting your time surfing between random PDFs, YouTube videos and fake Telegram tips? You have to stop right there. अगर आप अपने बैंकिंग के प्रिपरेशन रैंडम वीडियो से या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पर एक्सपर्टीज की कमी है, इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहीं पे रुकना होगा, क्योंकि नॉलेजिस्ट पर वी डोंट बिलीव इन मेकिंग यू स्टडी एवरीथिंग, रादर we want you to study what is important for your exam point of view. Crisp content, easy to understand bullet points, direct exam related questions and no clutter, no filters, just exam essential. और ये सैंपल सेशन आपका रहने वाला है एज एन आई ओपनर. सो सी वंस एंड देन डिसाइड व्हाट टू जॉइन एंड वेयर टू जॉइन. A single day delay could cost you the entire career. So toppers have started their preparation at Knowledgeist. So don't just delay. Prepare, which is best in the industry. Course link and everything is available in the description of the video, comment section, as well as in our application and website. Go and start your authentic preparation right now. And what is proceeds of crime? Means the money you get from criminal activity. Yes, PDF will be shared in the application. Money laundering involves concealing the origin of funds generated from criminal proceeds. This process is illicit fund, but this illicit fund or illegal fund appears to be legitimate. ठीक है, पैसा मेरे पास इलीगल पैसा है, मैं क्या करूंगा? I will give all of you a lot of money and then I will tell you please buy my courses. When you buy my courses, there is a GST attracted. I will pay income tax. Now, in other words, मेरा पैसा व्हाइट हो जाएगा. ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारे ब्लैक मनी होता तो ये कोर्स फी भी आपको मैं दे देता, भाई मुझे मेरे पैसे को मेरे अकाउंट में डालिए. ठीक है, इसी तरह से होता है, राइट? करप्शन, टैक्स एवासन, पॉन्जी स्कीम्स, फाइनेंशियल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, ये सब इसी से ही रूट होता है. ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. देन व्हाई एएमएल केवाईसी? एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है. ठीक है, कि व्हाई एएमएल केवाईसी? बैंक में एएमएल केवाईसी क्यों है? कस्टमर का डॉक्यूमेंट हम क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? ताकि कोई मैरिज प्रपोजल आए तो कस्टमर के एड्रेस में हम उसको भेजेंगे, या फिर चिट्ठी भेजना होता है हमें कस्टमर को, लव लेटर लिखना होता है. दैट्स व्हाई वी नीड कस्टमर्स एड्रेस, कस्टमर्स फोटो, एवरीथिंग. व्हाई वी नीड एएमएल केवाईसी इन बैंक्स? प्लीज आंसर. मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप आंसर दीजिए, बोलिए.
Why? The main reason for AML KYC implementation is to stop terrorist financing, not reduce risk. The main reason for which the AML KYC norm has surfaced. ठीक है, नॉट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन. कस्टमर आइडेंटिफिकेशन तो हम करेंगे कि AML KYC में सिर्फ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, बहुत और कुछ चीजें होता है. AML KYC in 2002 it was increasingly felt ग्लोबल डिस्कोर्स में आपका FATF काम कर रहा था इंडिया में. FATF के नियम के आधार पर हमने एक ऐसा रूल बनाया जिससे टेररिस्ट फंडिंग कम हो जाए. ठीक है, क्योंकि हमारा ही पैसा, आवर मनी इज बीइंग यूज्ड टू किल आवरसेल्फ. मनी लॉन्ड्रिंग मेजर चीज नहीं है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग. मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होता है. ठीक है, so in these days terrorist financing has grown significantly. मनी लॉन्ड्रिंग, TF, फाइनेंशियल क्राइम्स आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए ही होता है. Some criminals have organized into organized crime groups, OCGs, and professional money launderers to facilitate these activities. आप दिल्ली वैली में जाएंगे, हर नुक्कड़ चौराहे पे आपको एक मिल जाएगा. बात करेंगे तो इलीगली कोई दुकान के पीछे बैठा होगा जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है या फिर आपका पैसा लेके स्विस बैंक में डालेगा, हवाला काम करता है. सो टू स्टॉप दैट, ये सब थ्योरी है, आगे बहुत हम माइन्यूटली इसको पढ़ेंगे. ठीक है, agency administers the prevention of money laundering act 2002 is the directorate of enforcement in the department of revenue. ठीक है, ये काम ईडी का है. कौन करता है? ईडी करता है. इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म स्टार, जैसे स्पेशली फॉरेन स्टार्स जो इंडिया में आके काम कर रहे हैं, जैसे जैकलिन फर्नांडीज, नूरा फतेह, इन सब लोगों को कौन बुलाता है? ईडी बुला के ग्रिल करता है. फिर कुछ पॉलिटिशियंस को, जैसे आपके आदरणीय केजरीवाल जी और बहुत सारे आदरणीय पॉलिटिशियन, ठीक है, जो है जैसे शिवसेना से कुछ थे. ठीक है, फिलहाल बीजेपी के गवर्नमेंट है तो बीजेपी के नेता नहीं जाते, फिर उनका गवर्नमेंट चला जाएगा, फिर वो पॉलिटिशियन भी ईडी के राडर में आने लगेंगे. तो ऐसा ही होता है. ठीक है, तो ये ईडी ये सबको मेन एजेंसी है ईडी. जो भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, कॉन्ट्रावेंशन इन पीएमएलए एक्ट, मतलब पीएमएलए एक्ट को कोई डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? तो क्या होता है? ईडी बुला के ग्रिल करता है. ठीक है, फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, यू गो टू पुलिस, what you file? FIR. But in the case of a financial crime, you file ECIR. ठीक है, एनफोर्समेंट फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. FIR is fast information report, it is ECIR. Note it down. Then you have financial intelligence unit, FIUIND, under which Department of Revenue. Yes, Sachin. Okay. Then what is FATF? FATF का काम क्या है? It is a Financial Action Task Force, is a global organization to stop the terrorist financing. FATF issues various recommendations for anti-money laundering AML and combating financing of terrorism CFT as per the FATF standards of 2012. FATF is headquartered in Paris, established in 1989. Founders are the G7 nations. So there are three popular stages of money laundering. First is placement, then there is layering, third one is integration. Placement में होता क्या है? This is the first stage where the funds from the criminal activities are introduced into the financial system, usually through deposits in multiple bank accounts. Please remember the COVID times. What happened? कोविड टाइम को याद करिए, क्या हुआ? जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था, व्हाट दे डिड, दे वेंट टू, क्योंकि 10,000 या 20,000 का लिमिट था पर पर्सन, आप इतना ही बैंक में चेंज कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट दिस अल्ट्रा रिच पीपल डिड, दे वेंट टू द एरियाज वेयर देयर आर ह्यूज पॉवर्टी. वो सारे लोगों को 10,000 20,000 दे के लाइन में खड़ा कर दिया. दे गेव 10 to 20,000 rupees to each individual. Tell them go and deposit in your account. When you deposit in your account, after that you transfer out of 20,000, transfer to us 10,000 or 15,000. 5,000 you take it and rest is
Rest में yes, demonetization. Sorry, not COVID times. I am talking about demonetization. Yes, yes. I am talking not COVID times. Right? It is demonetization. तो ये लंबा क्यों हुआ? Why there was so long queues? Because there were so many black money holders. They were using this route. That is placement. एक बार अकाउंट में चला गया, इट देन व्हाट दे डिड, दे टोल्ड दिस पीपल कि आप इसको हमारे किसी अकाउंट में ट्रांसफर करिए, बाय आवर सब्सक्रिप्शन, गिव डोनेशन टू आवर स्कूल, do such kind of things. That is called layering. Second stage, in this stage funds undergo numerous financial transactions across different accounts, creating several layers, and it becomes hard for investigation. ठीक है, these people got 20,000, 10,000 they kept in their account, rest 10,000 they transferred to somebody. He collected 10,000 from 10-20 people, then one person bought a subscription, bought something online, bought some course, bought some school admission, gone for some NGO donation. That is layering. Finally, integration. When the money came to the NGO or came to the school, now it is legal money because they pay 18% GST, right? Then they pay income tax, they did everything legal. Now nobody can understand where the money came from. Integration. This is now time is to look into few top MCQs. 5 मिनट में कुछ क्विक MCQ देखेंगे पूरा AML KYC। जैसे देखिए मैंने भी इस क्लास में सारा जो है ना पूरे टॉपिक को सब कुछ ऐड किया था, कहाँ कहाँ से लाकर। Which of the following is not officially valid document? इसमें से OBD कौन सा नहीं है? बिल्कुल बढ़िया आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर, सभी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, पैन कार्ड नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फाटका? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फाटका? कुछ चीजें जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है आपको MCQ में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ए इज राइट आंसर। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट बाय यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट, आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, यूएस से कोई रेवेन्यू आ रहा है, कोई पैसा आ रहा है, कोई मनी जनरेट हो रहा है, तो आपको एक फाटका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपके KYC जब ओपन करेंगे आप ही के बैंक में भी देना पड़ेगा, ताकि बाई चांस आपका कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हो जिसमें यूएस गवर्नमेंट को आपको टैक्स कंप्लायंस का एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ठीक है। A bank which having no physical presence and is unaffiliated to any regulated financial group of a country is called। ऐसा कोई बैंक जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, किसी एक देश के साथ वो लिंक्ड नहीं है, उसको क्या कहते हैं? शैडो नहीं कहते, सेल बैंक कहते हैं। सेल बैंक कहते हैं, शैडो बैंक नहीं कहते। शैडो बैंक मतलब NBFCs को शैडो बैंक कहेंगे। ठीक है, वो साइड लाइन में बैंक के काम करते हैं, बैंक की तरह लोन देते हैं। वर्चुअल बैंक जैसे नियो कार्ड वगैरह है। ठीक है।